Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 3 Black Beauty of our English literature book as we discussed. In our last video, our topic were word meaning and fill in the blanks to complete the sentences of the chapter 3 Black Beauty. So we have read and note on word meaning of this chapter 3 in our Fire English literature notebook with the exercise A, fill in the blanks, in our last video. And today's our topic is homophones. So students, today we shall read homophones and today we shall read and knowing about homophones that's what's are homophones and included this topic we shall read and note down definition of homophones with its example in our Fire English literature notebook, and we shall also read and solve exercise of this chapter 3 in our Fire English literature notebook as we discussed. So let's see that what are homophones. Okay, look at the page number 25. स्टूडेंट्स होमोफोन्स मीन्स स्टूडेंट्स होते हैं. फर्स्टली लुक एट द पेज नंबर 24. ओके, होमोफोन्स वर्ड पहले स्टूडेंट्स देखिए वर्ड वंडर. ओके, रीड दिस वर्ड्स. रीड मीन्स पढ़िए, दिस मीन्स ये, वर्ड्स मीन्स शब्दों को. रीड दिस वर्ड्स इट्स मीन इन शब्दों को पढ़िए. सो लेट्स रीड. Look at the first number start, rain, R-A-I-N, rain. Look at the second number star, rain, R-A-I-N, rain. Okay, look at the blue star, first star of blue color, race, R-A-Y-S, race. Look at the second star colored with blue, rice, R-A-I-S-E, rice. Okay, so students, here the mean of race means किरणें. Okay, R-A-Y-S, race means होता है किरणें. Rice, R-A-I-C, rice. Rice means होता है जागना या उठना. Okay, these words have the same sound but different spelling and different meanings. Such words are called homophones. Okay, students, homophones पहले मैं firstly I am going to describe this word homophones. Okay, student, homophones, this word homophones make with two words, homo and phones. ये जो word है homophones, ये two words से make है. Okay, homo और phones से, it's a compound word. Homo means student होता है here the mean of homo same. Okay, and the mean of phones, the mean of phones sound. Okay, homo means होता है same, it's mean एक जैसा या समान. Phones means student होता है sound, it's mean ध्वनि. Homophones means student क्या हुआ? Same sound, it's mean समान ध्वनि. Okay, we can to say the mean of homophones is समान ध्वनि, या बोल सकते हैं कि the mean of homophones are समान ध्वनि वाले शब्द. क्लियर? ओके, these words have the same sound. ओके, ये जो वर्ड्स है ना, रैन, रेस, रेस. ओके, तो इनका साउंड जो है ना, इनकी जो ध्वनि है, ओके, वो सेम है, एक जैसी है. ओके, R-A-Y-S को भी हम रेस ही रीड करते हैं, इसका जो प्रोनाउंस्ड है वो रेस ही करते हैं. R-A-I-S को राइस, सॉरी R-A-I-S है ना, तो इसे हम राइस नहीं रीड करेंगे, R-A-I-S है, राइस रीड करना चाहिए था. बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज रेस, नॉट राइस. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इसका जो साउंड है ना, इसकी जो ध्वनि है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, उच्चारण है, वो सेम हो. ओके, सेम है बट डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट. एंड वी कैन सी. ओके, लुक एट द ब्लू कलर्ड स्टार्स. जो ब्लू कलर्ड स्टार्स उस पर देखिए, R-A-Y-S रेस है, R-A-I-S रेस है. ओके, तो इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है ना, इसका साउंड दोनों का सेम है, रेस रेस, लेकिन स्पेलिंग कितनी डिफरेंट है ना, R-A-Y-S R-A-I-S है ना, एंड डिफरेंट मीनिंग. ओके, और इसका जो मीनिंग है ना, इसका अर्थ है वो भी डिफरेंट है. R-A-Y-S रेस मीन्स होते हैं किरणें, एंड R-A-I-S राइस मीन्स होते हैं जागना, उठना. क्लियर? These words have the same sound but different spelling and different meaning. ये जो words है ना, ये जो शब्द है, तो इनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है. ओके, और इनका जो मीन है वो भी डिफरेंट है, बट इनका जो साउंड है ना, इनकी जो ध्वनि है वो सेम है. क्लियर? तो इन वर्ड्स की साउंड सेम है, लेकिन इनका स्पेलिंग और इनकी मीनिंग डिफरेंट है. क्लियर? सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स. ऐसे शब्दों को होमोफोन्स बोलते. इट्स मीन समान ध्वनि वाले शब्द बोलते. होमोफोन्स भी सिस्टेंट होते हैं समान ध्वनि वाले शब्द. क्लियर? ओके, students, turn your page forward and look at the page number 25. now we are going to solve exercise M. okay, exercise M है students, यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा exercise M. क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट होमोफोन्स. क्या करना है? करेक्ट होमोफोन्स, सही समान ध्वनि वाले शब्द के साथ हमें समान ध्वनि वाले सही शब्दों के साथ हमें जो रिक्त स्थान है ना, ब्लैंक है ना, कंप्लीट करना है. क्लियर? देन कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल. और फिर क्या करना है, ये जो इसके बाद जो हम ये जो फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो ये जो क्रॉसवर्ड पजल है ना, पजल मीन्स होते हैं पहली, जो क्रॉसवर्ड वाली हमारी जो पजल है, क्रॉसवर्ड वाली जो पहली है, इसको सॉल्व करना है. क्लियर? ओके, सो लेट्स सी.
अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स स्टूडेंट्स जो भी हम ये जो पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे, ओके और जो भी हमारा जो करेक्ट होमोफोन्स होगा ना, तो हम यहाँ पे जो हमारा पजल है क्रॉस वर्ड का, उसमें हम अक्रॉस इससे राइट डाउन करेंगे। अक्रॉस मीन्स स्टूडेंट होता है रो में राइट करना, क्लियर, पंक्ति में राइट करना, ओके। एंड आफ्टर इट हम जो सेकेंड वाली जो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है, ओके, फर्स्ट टू 9, ओके, तो इसे हम डाउन में कंप्लीट करेंगे अपने पजल में, क्रॉस वर्ड पजल में। इस मीन डाउन मीन्स होता है नीचे, इट्स मीन अप टू डाउन, ओके, ऊपर से नीचे की ओर कॉलम में हम इसे कंप्लीट करेंगे, ओके। इट्स मीन अक्रॉस मीन्स होता है रो, इट्स मीन पंक्तियों में कंप्लीट करेंगे। एंड डाउन मीन्स होता है कॉलम्स, इट्स मीन कॉलम्स मीन्स स्तंभों में कंप्लीट करेंगे, क्लियर, ओके। फर्स्टली वी आर गोइंग टू सॉल्व these fill in the blank. After it we will complete crossword puzzle, okay. So look at this, your second number is, okay, second number पे देखिए पहले across में, okay, there was a b oblique b मेकिंग अ हॉनीकॉम। स्टूडेंट बी, बी ई, बी को भी हम बी ही साउंड करेंगे एंड बी डबल ई, बी को भी हम बी ई साउंड करेंगे, ओके। तो बी इट्स योर होमोफोन्स, ये जो बी है ना वो हमारे होमोफोन्स वर्ड्स हैं, ओके, समान ध्वनि वाले शब्द है, क्लियर, क्योंकि स्टूडेंट इनका जो साउंड है वो सेम है। बी ई, बी को भी हम बी रीड करें, बी डबल ई का साउंड भी बी है, बट तो इनका जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, ओके। बी ई है एक का और एक का क्या है, सेकेंड वाले का बी डबल ई है, और इनका जो मीन है वो भी इनका डिफरेंट है, ओके। बी, बी ई, बी में स्टूडेंट्स होता है इट्स अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ कॉन्टीन्यूअस, ये कॉन्टीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इसके इंक्लूडेड आती है, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर। और बी मीन्स में होता है स्टूडेंट होना, ओके, होना या पाया जाना, एक वर्ब की ये फॉर्म होती है। और बी, बी डबल ई, बी मीन्स होता है स्टूडेंट्स मधुमक्खियाँ, क्लियर। So let's see, there was a making a honeycomb, okay, तो honeycomb, here the meaning of honeycomb that an arrangement with many holes in which bees live in make honey, okay, it's mean कि an arrangement with many holes, it's mean बहुत सारी holes के साथ, बहुत सारी छेदों के साथ एक व्यवस्था, in which bees live and make honey, it's mean जहाँ पे bees रहती, मधुमक्खियाँ रहती है और क्या बनाती है, हनी बनाती है, इट्स मीन शहद बनाती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हाइव बोलते हैं, इट्स मीन छत्ता बोलती है, ओके। तो देयर वाज अ मेकिंग अ हनी कॉम, इट्स मीन कि वहाँ पर हनी कॉम बना रही थी, छत्ता बना रही थी। तो कौन बनाएगा, बी बनाएगी ना, मधुमक्खी बनाएगी। द करेक्ट होमोफोन फॉर दिस सेकेंड नंबर सेंटेंस इज बी, क्लियर। सो ऑल स्टूडेंट put a tick on this on below this second number b double b and also write down b in your फर्स्ट नंबर ब्लैंक। फर्स्ट नंबर ब्लैंक पे क्या राइट डाउन करेंगे, बी, बी डबल ई, बी, क्लियर। अक्रॉस के जो फर्स्ट नंबर ब्लैंक है उस पर बी राइट डाउन करेंगे एज इट इज, ओके। तो राइट डाउन करिए बी, डी, बी डबल ई, बी, क्लियर। लेट्स सी 4 नंबर सेंटेंस। 4 नंबर सेंटेंस इज जय वांटेड अ ब्लैंक पीस, PIECE पीस, एंड द सेकेंड आपका पीस है PEACE, ओके, ऑफ चॉकलेट केक। इट्स मीन जय वांटेड, इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वांट, इट्स मीन चाहता था, ओके। आई मीन्स एक, ऑफ चॉकलेट केक मीन्स चॉकलेट केक का, ओके। तो स्टूडेंट पीस, PIECE पीस, इट्स मीन होता है टुकड़ा, एंड PEAC पीस मीन्स होता है सांटी। अब बताइए, टेल मी डेट व्हाट्स द करेक्ट होमोफोन हियर फॉर 4 नंबर सेंटेंस, पीस और पीस, इट्स मीन PIEC वाला पीस या PEACE स्पेलिंग वाला पीस, ओके। तो स्टूडेंट जय वांटेड टू जो करेक्ट हमारा होमोफोन्स है इस 4 नंबर सेंटेंस के, वो है PIECE पीस, ओके। बिकॉज इफ हियर वी विल राइट अ पीस, ओके, अगर हम पीस राइट करेंगे PEACE वाला, तो इसका मीन हो जाएगा कि जय एक चॉकलेट केक की सांधी चाहता था, नो, है ना। पीस मीन्स होते टुकड़ा, इट्स मीन कि जय वांटेड अ पीस ऑफ चॉकलेट केक, इट्स मीन कि जय चॉकलेट केक का एक टुकड़ा चाहता था, क्लियर। तो PIECE पीस इट्स अ करेक्ट होमोफोन। सो ऑल स्टूडेंट put tick below the first number piece PIECE and also write down piece in your second number blank, ओके। सेकेंड नंबर जो ब्लैंक है 4 नंबर सेंटेंस के लिए, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे पीस, क्लियर। लेट्स सी 5th नंबर सेंटेंस। और 5th नंबर सेंटेंस इज डोंट फॉरगेट टू चेक द मेल फॉर अ लेटर, ओके। मेल स्टूडेंट्स MAIL मेल, इट्स लाइक अ एड्रेस, एंड मेल MALE मेल में स्टूडेंट होता है जिसके इंक्लूडेड बॉयज आते हैं, इट्स मीन पुल्ली, ओके। तो डोंट फॉरगेट, इट्स मीन कि भूलिएगा मत, टू चेक मीन्स निरीक्षण करना, ओके। दी मेल मीन्स स्टूडेंट लाइक अ एड्रेस, फॉर अ लेटर मीन्स पत्र के लिए। डोंट फॉरगेट टू चेक द मेल फॉर अ लेटर, एक पत्र के लिए मेल को, इट्स मीन एड्रेस को चेक करना मत भूलिएगा, ओके, मत भूलना। तो स्टूडेंट्स द करेक्ट होमोफोन हियर फॉर द 5th नंबर सेंटेंस इज मेल, MAIL मेल, क्लियर। तो स्टूडेंट्स
पुट टिक बिलो द फर्स्ट नंबर मेल, ओके, इट्स मीन एड्रेस होता है, क्लियर, एंड आल्सो राइट डाउन मेल इन योर थर्ड नंबर ब्लैंक, क्लियर. Let's see 7 number sentences. So 7 number sentences. It's so cute when my dog waits. It's a tell. Okay. तो स्टूडेंट्स हियर द फर्स्ट टेल मीन इज, जो फर्स्ट टेल है TL इसका मीन्स होता है स्टूडेंट स्टोरी, कहानी. एंड द सेकंड मीन ऑफ टेल TL टेल मीन्स स्टूडेंट्स होते हैं पूछ, क्लियर. तो इट्स सो क्यूट व्हेन माय डॉग वेट्स. इट्स मतलब बहुत क्यूट लगता है मेरा डॉग जब वो अपनी टेल को वेट्स करता है, अपनी टेल को वेट्स करता है, क्लियर, हिलाता है. तो स्टूडेंट्स द करेक्ट होमोफोन फॉर द 7 नंबर सेंटेंस इज टेल, TAIL टेल, इट्स मीन पूछ, क्लियर. तो स्टूडेंट पुट टिक बिलो दिस सेकंड नंबर टेल एंड आल्सो राइट डाउन टेल TAIL टेल इन योर फुल नंबर ब्लैंक, क्लियर. सर यहाँ पे टेल का मीन्स होता है TALE, टेल मीन्स कहानी होता है, ओके, और TAIL मीन्स होता है पूछ. तो करेक्ट हमारा क्या है TAIL टेल, ओके. लेट्स सी 8 नंबर सेंटेंस. 8 नंबर सेंटेंस इज टुमारो दी ब्लैंक वेदर शुड बी रियली वार्म, ओके. तो स्टूडेंट्स वेदर WEATHER, वेदर मीन्स स्टूडेंट होता है मौसम, एंड वेदर WHETHER वेदर. तो स्टूडेंट दोनों का मीन डिफरेंट होता है. वेदर मीन्स मौसम, वेदर मीन्स होता है जबकि. तो टुमारो द वेदर शुड बी रियली वार्म, इट्स मीन कि कल का मौसम वास्तव में बहुत ही गर्म होना चाहिए, ओके. वार्म मीन्स गर्म, क्लियर. तो स्टूडेंट द करेक्ट होमोफोन्स फॉर द 8 नंबर सेंटेंस इज वेदर. सो ऑल स्टूडेंट पुट टिक बिलो फर्स्ट नंबर वेदर WEATHER एंड आल्सो राइट डाउन वेदर इन योर 5 number blank, okay. WEATHER because it's a correct homophone for 8 number sentence, clear. Let's see 10 number sentence. So 10 number sentence is Tarun needed more blank wood for the fire, okay. तो student wood WOULD wood, it's a helping verb, okay, helping verb है. and wood 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 भी होता है लकड़ी, okay. तरुण इट्स अ बाय नेम. नीडेड इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ नीड, इट्स मीन चाहता था. मोर मीन्स अधिक या ज़्यादा. वुड मीन्स लकड़ी WOOD वुड मीन्स लकड़ी. फॉर द फायर मीन्स आग के लिए. इट्स मीन कि तरुण ज़्यादा वुड चाहता था, ज़्यादा लकड़ियाँ चाहते थे आग जलाने के लिए, आग के लिए, ओके. तो द करेक्ट होमोफोन फॉर 10 नंबर सेंटेंसेस वुड WOOD वुड, ओके. इसलिए WOULD का यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है ना ये पास्ट इंडिपेंडेंस में, ओके. बिकॉज हियर वी एडेड ED, हियर वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस सेंटेंस. ये जो सेंटेंस में अपनी सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वर्ब की, इट्स मीन कि हमारा पास्ट इंडिपेंडेंस टेंस है, ओके. पास्ट इंडिपेंडेंस टेंस है तो फिर हम इसे फ्यूचर में नहीं ले जा सकते, इसके हम उड का यूज़ नहीं कर सकते, WOULD उड का यूज़ नहीं कर सकते. यही रीज़न है कि जो करेक्ट होमोफोन है वो ऊड होगा. और वैसे भी अगर हम यहाँ WOULD ऊड राइट करेंगे ना तो इसका मीन ही कुछ डिफरेंट हो जाएगा, इसका करेक्ट मीन नहीं निकलेगा, ओके. सो द करेक्ट होमोफोन फॉर 10 नंबर सेंटेंस इज वुड WOOD वुड. इट्स मीन तरुण को आग के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, और अधिक लकड़ी की ज़रूरत थी, मोर है ना, ओके. तो स्टूडेंट पुट टिक बिलो द सेकेंड नंबर वुड एंड राइट डाउन वुड इन योर 6 number blank, okay. WOOD wood. Let's see 11 number sentence which is last sentence of this topic across. जो across के लिए 11 number sentence है, last है, okay. Rhyma blank 8 pizza for dinner. 8 को भी हम 8 मीन्स होता है खाना. इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट की सेकेंड फॉर्म है 8, ओके. 8 इट्स अ नंबर, एक नंबर है, संख्या है. 8 मीन्स होता है 8, ओके. पिज़्ज़ा फॉर डिनर, ओके. इट्स मीन कि राइमा 8 पिज़्ज़ा फॉर डिनर. राइमा अपने डिनर के लिए, अपने रात के खाने के लिए, राइमा ने अपने रात के खाने के लिए पिज़्ज़ा खाया, ओके. तो स्टूडेंट्स 8 द करेक्ट होमोफोन फॉर 11 नंबर सेंटेंस. स्टूडेंट अगर सपोज करिए अगर आपने 8 यहाँ पे राइट डाउन किया होता इन प्लेस ऑफ 8 EIGST राइट डाउन किया होता 80E की जगह, तो क्या होता कि राइमा 8 पिज़्ज़ा फॉर डिनर, ओके. कि राइमा ने अपने डिनर के लिए 8 पिज़्ज़ा. तो इट्स नॉट गिविंग अस अ कंप्लीट मीन नहीं दे रहा है ना. तो स्टूडेंट जो करेक्ट होमोफोन है वो हमारा होगा 8 ओके. सो स्टूडेंट्स राइमा ने अपने रात के भोजन के लिए, डिनर के लिए पिज़्ज़ा खाए. 8 इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट, क्लियर. तो स्टूडेंट पुट टिक बिलो द फर्स्ट नंबर 8 एंड आल्सो राइट डाउन 8 इन योर इन दिस ब्लैंक फॉर 11 नंबर सेंटेंस, क्लियर. तो स्टूडेंट्स लुक क्लियरली डाउन, ओके. सो अब जो हम लोग डाउन पे अपने क्रॉसवर्ड में पजल में जो डाउनवर्ड राइट डाउन करेंगे ना तो उनके होमोफोन्स देख लेते हैं, ओके. लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस. योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज आई सा ग्रीजली बियर इन द वुड्स, ओके. आई मीन्स मैंने, सा मीन्स देखा, आ मीन्स से, ग्रीजली मीन्स ग्रीजली, ओके. एंड बियर इन द वुड्स, तो इट्स मीन मैंने वुड्स में एक ग्रीजली बियर देखा. तो बियर BEAR बियर मीन्स स्टूडेंट होता है इट्स अ एनिमल, ओके. जानवर होता है एक, भालू बोलते हैं. एंड बियर BARE बियर मीन्स होता है सहना, सहन करना, किसी चीज़ को सफ़र करना.
तो स्टूडेंट आप बियर को तो यू कांट सी बियर, ओके, आप बियर को नहीं सी कर सकते हो, नहीं देख सकते हो, क्योंकि बी ए आर बियर मीन्स होते हैं सहना, और इट्स इस ये क्या है आपका, ये आपका स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स यू कैन ओनली फील बियर, बी आर ई बियर, इट्स नॉट अ correct homophone for this first number sentence. All student put it below first number bear, it's mean it's a like a animal, it's mean होते हैं भालू, and also write down bear in your first number blank, okay, first number sentence. Then your sentence become I saw grizzly bear in the woods, मैंने woods में एक grizzly bear देखा, एक grizzly भालू देखा, clear, bear means भालू. Let's see second number sentence. So second number sentence is Shravani picked a blank berry from the bush, okay. तो स्टूडेंट बैरी, बी ई डबल आर बाई बैरी एंड बी और बाई बरी, ओके, बैरी एंड स्टूडेंट बरी हम लोग नहीं रीड कर सकते, ओके, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द दिस वर्ड बी और बाई बरी इट्स बैरी, ओके. तो स्टूडेंट हम इसे भी बैरी ही रीड करते हैं, बी यू आर वाई, तो ब्यूरी रीड करना चाहिए ना, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, बैरी ही होता है, क्योंकि हियर वी टॉक अबाउट होमोफोन्स, हियर वी रीड होमोफोन्स रीड करें, होमोफोन्स में क्या होता है, सेम साउंड, एक जैसी ध्वनि, ओके. तो बियर था तो बियर ही रीड किया था, बी ए आर ही था तभी हमने इसको बियर ना रीड करके बियर इसका साउंड किया था, और बी ई डबल आर बाई बैरी है तो इसका तो करेक्ट है प्रोनाउंसिएशन बैरी, बट जो सेकंड है बी यू डबल आर बाई, तो इसे ब्यूरी रीड करना चाहिए, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इट्स वर्ड बैरी, ओके, इसे भी हम बैरी ही रीड करेंगे, क्लियर. तो स्टूडेंट द करेक्ट होमोफोन फॉर दिस सेकेंड नंबर सेंटेंस इज बैरी, सो स्टूडेंट पुट इट बिलो दिस वर्ड बैरी एंड आल्सो write down berry in your second number blank, then your sentence become Shravani picked a berry from the bush, clear. Let's see third number sentence. So third number sentence is John blank missed this sunset this morning, it's mean mist means mist, the mean of first number mist is धुआं या कोयरा होता है, ओके, एंड द मीन ऑफ सेकंड नंबर मिस्ट MIST, मिस्ट मीन्स होते हैं गवा देना, किसी चीज़ को मिस कर देना, ओके. इट्स मीन वो आप उससे मतलब आप उसे देख ना पाए, आपसे कुछ चीज़ मिस हो जाना, क्लियर, उसे बोलते हैं मिस. जैसे सपोज दैट आप अगर लेट उठे, ओके, मॉर्निंग टाइम आप लेट उठे, ओके, देर से उठे, और तो आपने क्या किया, जब आप उठे तो काफ़ी टाइम हो गया, तो आपने क्या मिस कर दिया, आपने सनराइज़ मिस कर दिया, ओके. तो इट्स मीन कि कुछ मिस होते, कुछ गवा देना, कुछ मिस कर देना. जॉन मिस्ड द सनसेट दिस मॉर्निंग, ओके, तो जॉन ने इस सुबह सनसेट को मिस कर दिया, ओके. इट्स मीन सनसेट, सनराइज मीन्स होते सूर्योदय, एंड सनसेट मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, सूर्यास्त, ओके. तो सनसेट को मिस कर दिया, क्लियर. द करेक्ट होमोफोन फॉर दिस थर्ड नंबर सेंटेंस इज मिस्ड, MISSED, मिस्ड, क्लियर. So student put it below this second number missed and also write down missed in your in this third number blank for third number sentence, clear. ये जो third number blank है उसमें missed write down करिए, okay. Let's see four number sentence. So four number sentence is Bhavna took a shovel and a blank pail to the beach, okay. तो भावना took it's a second form of take, okay. It's mean लिया, means एक, take means होता है लेना, took means लिया, okay. ये जो took है ना ये take की second form है, okay. सॉवेल, एक सॉवेल लिया, एंड अ स्टूडेंट पेल, PALE, हियर द मीन ऑफ पेल, PALE दैट बकेट हो, नो स्टूडेंट, हियर द मीन ऑफ फर्स्ट नंबर पेल, PALE, पेल मीन्स होता है हल्का पीला, ये बोल सकते हैं लाइट येलो या घेरा या बाड़ा होता है, PALE, पेल मीन्स, ओके. एंड द सेकेंड मीन ऑफ दिस वर्ड पेल, PIL, जो पेल है, जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेल, इसका मीन क्या होता है, इसका मीन होता है स्टूडेंट बकेट, बाल्टी, ओके. तो स्टूडेंट द मीन ऑफ फर्स्ट पेल, PALE इज बोल सकते हैं लाइट येलो या बाड़ा या बोलते हैं घेरा, ओके. एंड द मीन ऑफ सेकेंड पेल, PIL, पेल इज बोल सकते हैं बकेट, ओके, बाल्टी. तो भावना ने एक स्टूडेंट द करेक्ट होमोफोन फॉर 4 नंबर सेंटेंसेस पेल, PIL, पेल, इट्स मीन होता है बकेट, ओके. क्योंकि जो भावना है ना वो पेल को तो ले नहीं सकती, PALE, पेल, इट्स मीन बाड़ या घेरा को नहीं ले सकती ना, वो बकेट को ले सकती, बाल्टी को ले सकती. द करेक्ट होमोफोन फॉर द 4 नंबर सेंटेंस इज पेल, PAIL, पेल, क्लियर. तो स्टूडेंट put take a below pail, PIL, pail, which is your second number word, and also write down this word pail, PIL, pail in your 4 number blank for this 4 number sentence, clear. Then your sentence become Bhavna took a shovel and a pail to the beach, okay. तो भावना ने मिड से एक सॉवेल और एक पेल लिया, इट्स मीन एक बकेट लिया, बाल्टी लिया, क्लियर. लेट्स सी 6 नंबर सेंटेंस. और 6 नंबर सेंटेंस, आई मेक श्योर टू ब्रश माई टीथ एवरी ब्लैंक नाइट, ओके. तो मैं निश्चित हूँ कि प्रत्येक रात में हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए, अपने दांतों को साफ करना चाहिए, क्लियर. तो NIST नाइट मीन्स हो गया रात, एंड KNIST इट्स अ डिफरेंट मीन ऑफ नाइट, क्लियर. दोनों का मीन डिफरेंट है.
तो द करेक्ट होमोफोन फॉर द 6 number sentence is night. So also and put tick below the word night and also put down and also write down this word night in your 6 number blank. Okay, 6 number blank पे write down करिए night NIGST. Look at the 7 number sentence. So 7 number sentence is Mayank blank threw. Okay, throw. Okay, so student see THREW threw, but the correct pronunciation of this word is throw. Okay, throw the ball to his head. Okay, तो इट्स मीन कि मयंक ने फेंका. THREW थ्रू मीन्स होता है फेंका. ओके, एंड इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ थ्रो की सेकेंड फॉर्म है. क्लियर? थ्रो मीन्स होता है फेंकना. THROW थ्रो मीन्स फेंकना, एंड थ्रू इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ थ्रू. इट्स मीन फेंका. ओके, THREW. एंड हियर द मीन ऑफ थ्रो. THROUGH का मीन क्या होता है? थ्रो का मीन होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक. इट्स मीन होता है आखिर तक. ओके, तो स्टूडेंट्स जो थ्रू मीन्स हो गया फेंका, एंड थ्रो मीन्स हो गया थ्रो मीन्स हो गया आखिरी तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक. ओके, स्टार्ट विथ 1.2 एंड विथ अनदर पॉइंट द बॉल टू हिज हेड. ओके, इट्स मीन कि मयंक थ्रू द बॉल टू हिज हेड. मयंक ने उसके हेड पे, उसके सिर पे एक बॉल को फेंका. क्लियर? मयंक ने उसके सिर पे बॉल को फेंका, गेंद को फेंका. तो थ्रू होगा ना करेक्ट. THREW इट्स मीन फेंका. क्लियर? तो स्टूडेंट पुट टिक बिलो द फर्स्ट नंबर थ्रू एंड आल्सो राइट डाउन द वर्ड थ्रू इन योर 7 number blank. ओके, 7 number blank पे राइट डाउन करिए. योर 9 number sentence is तन्मय ब्लैंक वॉर इज फेवरेट सर टूडे. ओके, स्टूडेंट WAR वॉर मीन्स होता है युद्ध, एंड WAR वॉर मीन्स होता है पहनना. ओके, इट्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ वियर की सेकेंड फॉर्म होती है वॉर. ओके, WEAR वियर मीन्स होते हैं पहनना, वॉर मीन्स पहनना, WORE. क्लियर? तो स्टूडेंट तन्मय, अगर हम सपोज दैट फर्स्ट नंबर आप वॉर लीजिए, WAR. ओके, तो क्या हमारा सेंटेंस होगा स्टूडेंट? तन्मय वॉर हिज फेवरेट सर टुडे. तन्मय ने आज अपनी फेवरेट मीन्स विच यू लाइक मोस्ट. ओके, पसंदीदा शर्ट को युद्ध किया. नो, इट्स रॉन्ग, है ना. द करेक्ट होमोफोन इज वॉर, WORE वॉर. देन योर सेंटेंस बिकम तन्मय वॉर हिज फेवरेट शर्ट टुडे. तन्मय ने आज अपनी फेवरेट, इट्स मीन पसंदीदा शर्ट को पहना. क्लियर? तो स्टूडेंट पुट टिक बिलो द सेकेंड नंबर वॉर एंड आल्सो राइट डाउन दिस वर्ड वॉर इन योर 9 number sentence, 9 number blank. Then your sentence give us a complete meaning. Clear? Okay students, we have completed all these fill in the blanks. Okay, now we are going to solve this crossed puzzle. Okay, so look clearly. Okay, puzzle को solve करने जा रहे हैं इसको. तो student look clearly. Firstly we are going to all letters right here in this crossword puzzle across. ओके, जितने भी हमारे across के जो हमारे होमोफोन्स थे वो हम सबसे पहले राइट डाउन करेंगे. उसके बाद डाउन के जितने भी हमारे जो होमोफोन्स होंगे उन्हें राइट डाउन करेंगे. क्लियर? तो स्टूडेंट लुक लाइक दी सेकेंड नंबर होमोफोन इज बी. ओके, बी हमारा जो होमोफोन है वो सेकेंड नंबर पे जो होमोफोन है वो बी है ना. लुक लाइक अक्रॉस स्टूडेंट देख रहे हैं. ओके, अक्रॉस मीन्स हो गया हम रोज में देख रहे हैं, पंक्तियों में देख रहे हैं. ओके, जैसे कि हमारी नोटबुक में लाइन्स होती है ना, उस टाइप से देख रहे हैं. क्लियर? उसे बोलते हैं रोज, इट्स मीन पंक्तियाँ. तो स्टूडेंट लुक लाइक ये सेकेंड नंबर है ना, तो यहाँ पे राइट डाउन करिए BEE. क्लियर? जो हम राइट डाउन ईच लेटर इन ईच ब्लैंक. ओके, ईच ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में एक ही लेटर राइट डाउन करने हैं, तो BEE राइट डाउन करेंगे. क्लियर? सेकेंड नंबर 4 number होमोफोन इज पीस, PIECE, पीस मीन्स टुकड़ा. ओके, तो स्टूडेंट तो लुक लाइक 4 नंबर यहाँ पे होमोफोन राइट डाउन करेंगे PIECE, पीस. क्लियर? राइट डाउन कर लिया ना, रो पे राइट डाउन करें. लेट्स सी योर 5th number होमोफोन इज मील, MAIL मील मीन्स एड्रेस. ओके, तो कौन सा स्टूडेंट है? 5th number है. ओके, तो राइट डाउन हियर MAIL मील. ओके, मेल राइट डाउन किया. नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा होमोफोन यहाँ पे टेल, TAIL, टेल मीन्स पूछ. ओके, तो हमारे नंबर कौन सा है? 7 number है, तो फाइंड आउट 7 number. इट्स अ 7 number. ओके, TAIL टेल राइट डाउन किया. क्लियर? अवर नेक्स्ट होमोफोन इज वेदर एंड इट्स अ 8 number. 8 number पे वेदर राइट डाउन करना है ना, वेदर मीन्स मौसम. ओके, तो स्टूडेंट राइट डाउन हियर वेदर, WEATHER वेदर. क्लियर? Our next homophone word is wood. Okay, WWOD wood. Okay, wood means लकड़ी. तो स्टूडेंट ये हमारा कौन सा स्टूडेंट है? कौन सा नंबर है? 10 number है. ओके, सो लेट्स सी वेयर इज 10 number. ओके, वी आर फाइन. मुझे मिल गया 10 number है wood, WWOD wood राइट डाउन किया. क्लियर? Our next across homophone word is 8, ATE8 and it's a 11 number. 11 number पे है. ओके, तो सबसे लास्ट में होगा ATE8 राइट डाउन किया. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल इन डाउन. ओके, डाउन में हम कंप्लीट करने चाहिए. इट्स मीन अप टू डाउन, ऊपर से नीचे. जैसे कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना अपनी नोटबुक पे, वैसे हम लोग ये अप टू डाउन देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक. ओके, तो यहाँ पे हमें जो होमोफोन्स राइट डाउन करनी है वो अप टू डाउन यहाँ पे राइट डाउन करनी. ओके, योर फर्स्ट नंबर होमोफोन इज बियर, BEAR बियर. ओके, तो लुक लाइक दैट वेयर इज योर फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर कहाँ पे राइट डाउन है? यहाँ पे. ओके, आई हैव मीट. ओके, मुझे मिल गया BEAR. ओके, बियर मीन्स हो गया भाली. ओके, राइट डाउन किया.
and let's see your second number is berry, B-E-R-R by berry. Okay, so berry, it's a second number homophone word, and it's a second number. Okay, B-E-R-R by berry, right on kya? Okay, your next number homophone is mist, M-I-S-S-T mist, it's a third number. Okay, third number student ये है आपका M-I-S-S-T mist, right down, clear? Okay, your fourth number homophone is pail, P-A-I-L, pail. Pail means bucket, it's mean balti, it's a 4 number homophone. Okay, 4 number homophone है तो find out 4 number. 4 number find out क्या? P-A-I-L, pail है. Okay, it's in bucket, balti. Your next homophone word is night, it's a 6 number. Okay, homophone word 6 number है तो student N-I-G-S-T night, यहाँ पे write down, clear? Your 7 number homophone word is stew. Okay, look at the down पे देख रहे हैं. Okay, तो look at the 7 number. 7 नंबर फाइंड आउट करिए पहले कि 7 नंबर, वेयर इज अवर 7 नंबर. 7 नंबर कहाँ पे स्टूडेंट? सो वी हैव सी 7 नंबर. ओके, यहाँ पे 7 नंबर हम देख सकते हैं. ओके, तो राइट डाउन यार थ्रू, THREW, थ्रू, इट्स मीन फेक, एट द सेकंड फॉर्म ऑफ थ्रो. क्लियर? 9 नंबर स्टूडेंट होमोफोन इज वॉर. ओके, WRE वॉर. वॉर मीन्स ये द मीन ऑफ वॉर मीन्स पहनना. ओके, इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ वियर. ओके, तो स्टूडेंट वेयर इज 9 नंबर? 9 नंबर कहाँ है? ओके, तो वी कैन सी दैट हियर 9 नंबर. ओके, WORE वॉर. क्लियर? कंप्लीट कर लिया ना? तो स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू all words, all homophones of this exercise M, and I hope you must have understood this exercise and you have understood this topic homophone. You have no problem in this exercise and in this crossed puzzle. Okay, so still now we are going to solve exercise A of this chapter 3 in our Far English Literature notebook. So let's see. Your first number question is what are homophones? Homophones क्या है? It's mean समान ध्वनि वाले शब्द क्या है? ओके, योर आंसर इज होमोफोन्स आर वर्ड्स विच आर प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग. होमोफोन्स मीन्स समान समान ध्वनि वाले. ओके, समान ध्वनि वाले. आर मीन्स है, वर्ड्स मीन्स शब्द, विच मीन्स जो, आर मीन्स है. ओके, प्रोनाउंस्ड मीन्स उच्चारण किया जाता है. इन द सेम वे मीन्स उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से, एक जैसा या समान, बट हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन अलग अलग अर्थ रखते हैं. एंड स्पेलिंग मीन्स स्पेलिंग भी. क्या? Homophones are words which are pronounced in the same way but have different meanings and spellings. It means समान अर्थ वाले शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो प्रोनाउंस्ड होता है, जिनका जो उच्चारण होता है वो एक जैसा होता है, समान होता है. ओके, बट इनका जो मीनिंग होता है, इनका जो अर्थ होता है, इनकी जो स्पेलिंग होती है, क्लियर, वो डिफरेंट होती है, भिन्न भिन्न होती है. क्लियर? लुक एट दिस एग्जाम्पल को देखिए. Okay, pail, P-A-I-L, pail. Pail means assistant, bucket. Here the mean of first pail is bucket, and let's see your second number pail. Your mean of second number pail is enclosure. Oh, sorry, enclosure. Okay, here the mean of enclosure that बाड़ा या घेरा. Okay, बाड़ा या घेरा, ENCLOSURE. Okay, enclosure means assistant होते हैं बाड़ा या घेरा, बाड़ा या घेरा. ओके, इसे बोलते हैं. एंड स्टूडेंट जो हमारा जो वर्ड है ना, PALE, पेल, इट्स मीन ये भी होता है जो इसका इनक्लोजर है, इसका अगर इट्स अ नाउन. ओके, नाउन है इनक्लोजर, इट्स मीन बाड़ा या घेरा, या बोल सकते हैं हम कि बाड़ा या घेरा ही बोलते हैं. और इसका स्टूडेंट जो वर्ब होता है वो होता है कि लाइट येलो, हल्का पीला. ओके, तो लुक क्लियरली दैट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ both words are same. Okay, the sound of both words are same. Okay, P-A-I-L, पेल, तो पेल ही रीड करेंगे, इसका साउंड पेल ही होगा. P-A-L, इसे भी हम पेल ही, इसका साउंड हो रहा है. बट द स्पेलिंग ऑफ बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट, लेकिन जो इसकी स्पेलिंग है वो डिफरेंट है. P-A-I-L पेल है और P-A-L पेल है. ओके, एंड द मीनिंग आल्सो डिफरेंट ऑफ दीज वर्ड्स. ओके, जो वर्ड्स है, दोनों वर्ड्स है, उनके मीन भी डिफरेंट है. द मीन ऑफ फर्स्ट नंबर पेल, P-A-I-L पेल, इज बकेट, इट्स मीन बाल्टी. एंड द मीन ऑफ सेकंड नंबर पेल, P-L-E पेल, इज इनक्लोजर, इट्स मीन बाड़ा या घेरा. या इसका मीन ये भी हो सकता है एज अ वर्ब, लाइट येलो. ओके, हल्का पीला. क्लियर? तो पेल इट्स योर होमोफोन्स, आपके होमोफोन्स है, क्योंकि इनका जो साउंड है वो सेम है बट इनके स्पेलिंग और मीन डिफरेंट है. क्लियर? तो स्टूडेंट, टुडेज अवर टॉपिक हैज फिनिश्ड होमोफोन्स, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक होमोफोन्स. यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक होमोफोन्स. तो स्टूडेंट, टुडेज क्लास वर्क इज दैट कंप्लीट एक्सरसाइज एम. स्टूडेंट, फर्स्टली यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स के पास एम राइट डाउन कर लेना, ताकि हमें ये मार्क हो जाए कि हाँ ये हमें रिमेंबर है कि एक्सरसाइज एम है. क्लियर? यहाँ पे मार्क नहीं है तो आप मार्क कर लीजिएगा, बुक में यहाँ प्रिंट नहीं है. क्लियर? इस एक्सरसाइज को कोई भी नेम नहीं दिया गया, तो आप ऐसे एम नेम दे दीजिएगा. तो स्टूडेंट, टुडेज क्लास वर्क इज दैट कंप्लीट एक्सरसाइज एम ऑफ दिस चैप्टर थर्ड ब्लैक ब्यूटी in your Far English Literature book as Vishasta, and after it note down exercise A, answer this question of chapter 3 Black Beauty in your Far English Literature notebook. It's a 2 days class, and your homework is that your homework is that we can say that learn question number A. Okay, learn question first and exercise M of this chapter third Black Beauty.
इट्स अ 2 days होमवर्क. ओके, देन क्लास वर्क क्या है, आपको फर्स्टली आपको एक्सरसाइज एम कंप्लीट करनी है. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज का, क्रॉसवर्ड कंप्लीट करना है. ओके, और उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है आपको, ये जो एक्सरसाइज है आंसर दिस क्वेश्चन, इसे अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे राइट डाउन करना है. होमवर्क क्या आपको स्टूडेंट ये लर्न करनी है एक्सरसाइज एम और एक्सरसाइज ये लर्न करनी है. ओके, so all students, I have described your classwork and homework. So all students complete your classwork and send me your work here. Okay, note complete exercise M of this chapter 3 in your English literature book as Sastra, and after it note down exercise A, answer this question of chapter 3 in your Fair English literature notebook. So all students complete your classwork and send me your work here. Thank you.